Yeah, I want to say, the greatest thing that Jesus taught us मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने जो सिखाई है उनमें से जो बहुत ही महान बातें हैं humility and submission to authority. वो है नम्रता और अधिकार के अधीनता में रहना। Jesus submitted to his Father. यीशु मसीह अपने पिता के अधीनता में उसने अपने आप को समर्पित किया। 1 Corinthians chapter 11 पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय verse 3. उसका 3 वचन। See, like in the military, there are different levels of leadership all the way up to the general. और जैसे मिलिट्री के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग स्तर होते, क्रम होते जनरल तक पहुंचने के लिए। The captain is under the colonel and he's under the general. और फिर कैप्टन और जनरल और फिर कप्तान होता है, फिर जनरल होता है। So here it says, above every man the head is Christ. Christ is the head. 1 Corinthians 11 verse 3. और 11:3 The head of every man is Christ. हर एक पुरुष का सिर मसीह है And man is the head of the woman. और स्त्री का सिर पुरुष है And Christ has also got a head, which is God the Father. और मसीह का सिर परमेश्वर है। So you see this order. और इस क्रम को आप देखें, There's God the Father, परमेश्वर पिता है, there's Christ, यीशु मसीह है, there's a man, फिर पुरुष and है there's the woman. और स्त्री है। So is the woman below the man? और इसका मतलब क्या स्त्री पुरुष के नीचे है? Is Christ below the Father? और क्या यीशु मसीह पिता के No, नीचे है? नहीं। he's equal with the Father. और वो परमेश्वर के एक समान है। He is God. वो परमेश्वर है He is from all eternity. Christ is equal with the Father. और वो हर एक अनंत काल से लेकर पिता के साथ एक है। He voluntarily took that place of submission to the Father when he came to the earth. और जब वो संसार में आया तो एक स्वेच्छा के साथ उसने पिता के अधीनता में रहने का स्थान लिया। So also man and woman are equal before God. और वैसे ही परमेश्वर के सामने स्त्री और पुरुष एक है। 1 Peter 3:7 says they are joint heirs. और पहले पत्रस में जैसे लिखा है कि वो एक ही वारिस That की means they are both sitting on thrones and the throne is same level, not one below the other. और जैसे कि आप दोनों एक ही समानता में रखे गए, एक सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं। But yet, like Christ voluntarily submitted to the Father, the woman voluntarily submits to the husband. लेकिन ठीक उसी तरह से जैसे यीशु मसीह ने स्वेच्छा से पिता के अधीनता में रहने को चुना, वैसे ही स्त्री पुरुष की अधीनता में स्वेच्छा से रहने के लिए चुनती है। Now, some of you husbands, you can hear about submission and you go home and say, "Come on, you wives, you better submit to me." That's the way we'll have a godly home. और जैसे आप पति यहाँ पर सुन रहे हैं कि पत्नी को अधीनता में रहना, आप घर पर जाके फिर टोक कर कहे कि अभी हम अपने ईश्वरीय परिवार को बनाएंगे, तुझे मेरे अधीन में रहना है। You won't build a godly home there. वैसे आप एक ईश्वरीय परिवार नहीं बनाएंगे। You'll build a dictatorship like Iraq and all they have. और इराक ईरान जैसे एक तानाशाही जैसा एक कुछ बनाएंगे आप। God the Father did not say to Christ, "You better submit to me." और पिता ने कभी यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे अधीनता में रहना ही है तुझे। So don't misunderstand. तो इसको आप गलत न समझे। It's very important. बहुत ही महत्वपूर्ण You है। can go home and tell your wife, "Did you hear how Sister Annie submits? Now you submit like that." और घर पर आकर ये पत्नी को मत कहने कि देखो सिस्टर एनी कैसे सबमिट करते, वैसे तू भी सबमिट कर। You will never build a godly home like that. और वैसे आप कभी भी एक ईश्वरीय परिवार नहीं बना पाएंगे। Have you seen this verse which says, "Husbands, be subject to your wives"? और कभी आप ऐसा वचन कभी आप देखा है कि पति अपने पत्नियों के अधीन रहो? Is there a verse like that in the Bible? क्या ऐसा वचन आपने कभी पढ़ा है बाइबल में? Wives, be submit to your husbands. ऐसा जरूर पढ़ा है कि पत्नियां जो है पति के अधीन रहे। What about husbands, be subject to your wives? लेकिन यदि ऐसा कहे कि पति जो है पत्नियों के अधीन रहे, Aren't you sisters excited to hear that there's such a verse in the Bible? क्या यहाँ पर बहनें बहुत ही आनंद से नहीं भरी है ऐसा कोई वचन सुनने या समझने के लिए? This is not Zach Punan teaching, it's the Holy Spirit और ये teaching. कोई जैक पुनन की शिक्षा नहीं है, पवित्र आत्मा की शिक्षा है। Ephesians 5:21. इफिसियों 5:21। I can see all the sisters eagerly looking up this verse. और मैं देख पा रहा हूँ बहनें बहुत ही इच्छा और बहुत ही आनंद से इस वचन को देख रहे हैं। Ephesians 5:21. इफिसियों 5:21। What does it say? वहाँ क्या लिखा है? It's talking about husbands and wives in the next 2 verses. और उसके आगे के वर्ष में पति और पत्नी के बारे में ही बात करता है। So what should these husbands and wives do? ये पति पत्नी को यहाँ पर क्या करना चाहिए? Be subject to one another in the fear of Christ. और 21 वचन, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। Husband, be subject to your wife. Wife, be subject to your husband. और पति जो है पत्नी के अधीनता में और पत्नी पति के अधीनता में। Then it says, wives, be subject to your husband in the next verse. और उसी के बाद फिर अगले वचन में हम चलते कि जहाँ पत्नियों को लिखा गया है कि अपने पति के अधीन रहो। It's like Christ is equal with the Father and Christ submits.
और ये इस प्रकार है कि यीशु मसीह जो पिता के एक समान है और So- फिर स्वेच्छा से समर्पण करता है। Husbands must see the equality of their wives first, then only the wife submission brings the और results. इसी प्रकार पति को पत्नी को एक समानता में उसको पहले देखना है, एक समानता में, फिर ही स्वेच्छा से वो आपके अधीनता में आएगी। If you think you're superior, you will never build a Christian home. और यदि आप सोचेंगे कि आप पत्नी से बहुत ही ऊपर उठ के हैं तो कभी भी आप एक मसीह परिवार नहीं बना पाएंगे। Because God has given a boundary for the wife and a boundary for the husband. और एक पति के लिए और पत्नी के लिए परमेश्वर ने एक बाउंड्री को बनाया है And each must fulfill their responsibility within their boundary. और उसी बाउंड्री के अंदर उनको अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरी करना है। Let me use an example. एक उदाहरण मैं इस्तेमाल करूंगा, Verse 28. उसका 28 वचन। Husbands ought to love their wife like their own body, और यहाँ लिखा है पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी ही देह के समान प्रेम रखे, because the husband is the head of the wife. क्योंकि जो पति है पत्नी का सिर है। Verse 23. 23 वचन में। So, see, there are many types of heads in the world. और संसार में हम देखते हैं बहुत प्रकार के सिर है, Head of the department, और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट का head of मुखिया, a country, एक जो देश है उसका एक मुखिया होता है, or head of the body. और एक शरीर का जैसे एक सिर होता है। Which type of head is the husband? और किस प्रकार का सिर पति है? If husband is head of the department, it will be a dictatorship in the house. और पति अगर एक डिपार्टमेंट का हेड होता है, ऐसा अगर सिर है तो वो पूरी तरह से तानाशाही करेगा। It's not that type of head. और इस प्रकार का वो सिर नहीं है, Head of the body. शरीर का सिर है। There are two things you see there. और दो चीजें यहाँ पर हम देखते हैं। This body is subject to the head. और ये जो शरीर है वो इस सिर के अधीनता में है। If the head tells the hand, lift up, it will lift up. अगर ये सिर हाथ को कहता है कि अपने हाथ को उठा तो वो हाथ उठाता Go है, down, it will go down. वो हाथ नीचे कर तो हाथ नीचे करता है, It's completely obedient. वो पूरी तरह से आज्ञा पालन करता है। But at the same time, लेकिन उसी के साथ if one mosquito comes and bites this hand, यहाँ पर ये हाथ पर आकर एक मच्छर का आकर काटता है, the head is immediately concerned. और वहां पर तुरंत वो सिर को चिंता होती है Tells the other hand, come on, drive it away. और दूसरे हाथ को बोलता है कि उसको आप मच्छर को निकाल दें। How quickly the head is concerned about a small problem that comes in the body. और ये सिर जो है कितना अधिक चिंता करता है, छोटी सी समस्या मच्छर जैसी उसकी भी वो चिंता करता है हाथ के बारे में। Not after 2-3 hours of the mosquito biting it, it's immediate. और वो 2-3 घंटे बाद नहीं चिंता करता, लेकिन तुरंत जब वो मच्छर काटता है तुरंत उसकी चिंता करता है। That is how a husband must be concerned as head for the body. और उसी प्रकार से एक सिर जो एक पति है अपने जो शरीर जो है उसकी चिंता करना चाहिए। Not just you must submit like the body is to the head. और ऐसा नहीं जैसे एक शरीर को अधीनता में रहना है उस प्रकार तुझे अधीनता में रहना, उतना ही नहीं। True. ये सच बात है, But the head must be concerned for the body also. लेकिन जो सिर है उसको शरीर की चिंता भी करना है। That if your wife is under pressure, you are sensitive to that. और यदि आपकी पत्नी किसी दबाव के अंदर है तो आपको उसको तुरंत संवेदनशील See, होकर दे। any weakness in this body, the head is immediately concerned. और देखिए एक शरीर के अंदर कोई भी निर्बलता आ जाती है तब वो तुरंत सिर उसकी Immediately, चिंता करता है, it तुरंत does something to fix the problem. और कुछ न कुछ वो करता है ताकि वो समस्या को वो सुलझा सके। That is the balance of relationship between the head and the body. और यही एक संतुलन है सिर और उस शरीर के बीच का जो संबंध है That is उसके the बीच में। picture of a husband-wife relationship. और यही पति पत्नी के जो संबंध है उसका एक Now, चित्र है। you will not get there in one day. और ये एक दिन में नहीं होगा, You may take 50 years to get there. और वहां पर शायद 50 साल लगेंगे But पहुंचने के लिए। if you work and work and work towards it, it will become more and more like that. और यदि आप उसकी और काम करते जाएंगे तो वैसा होता So जाएगा। what I say is, brothers and sisters, और मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई और बहनों, work towards it. उसकी और आप काम Say, करना आरंभ Lord, करें। I want to work towards this, प्रभु मैं इसकी और काम करना चाहता हूँ, where our relationship is like head and body. और जहाँ पर हमारा संबंध जो है वो सिर और इस शरीर के समान हो सके, The body submits to the head, और जहाँ शरीर जो है but सिर the के head अधीनता में cares है, for every little problem the body has. और यहाँ तक कि सिर जो है शरीर में आने वाली हर एक समस्याओं के बारे That में वो is चिंता a करे। beautiful relationship. ये बहुत एक सुंदर एक ये संबंध है। And I tell you, the devil hates that. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि शैतान इससे बहुत ही ज्यादा नफरत करता है Tries best to prevent it. और अपना श्रेष्ठ वो करता है ताकि ऐसा न हो। You determine that you're going to have that type of relationship as husband and wife. आप इसका निश्चय करें कि आप पति पत्नी के रूप में ऐसा संबंध चाहते हैं या नहीं। And sometimes your marriage partner may not be interested in such a relationship. और हो सकता है कि आपका जो दूसरा जो पार्टनर है वो ऐसे संबंध के अंदर रुचि नहीं रखता We are होगा। all basically very selfish people. हम बहुत ही स्वाभाविक रूप से बहुत ही स्वार्थी लोग हैं। Selfish means I think only of my need. स्वार्थी का ये मतलब है कि मैं हमेशा अपनी ही जरूरत के बारे में You सोचता don't think हूँ, of your wife's need or your husband's need. और हम अपनी पति या पत्नी की जरूरत के बारे में पहले नहीं सोचते हैं।